Today my topic is AI powered personalized marketing assistant. First of all, we all overview the project. In this model, my problem statement is business struggle with real-time customer behavior analysis and hyper personalization with cost-effective targeting. My solution is about integrated an AI system with dynamic marketing personalized using RAG, RL, and GNN. Our core technology is machine learning and predictive analytics, where we use collaborative filtering for personalized recommendation, deep neural network for behavior analysis, reinforcement learning for campaign optimization, and we use NLP and advanced AI techniques like RAG and GNN. Uh, and our implementation is about where we in phase one we planning about the project initiating and then data collection and infrastructure setup. Then for core AI, we use API key of Google Gemini. And about our data structure, we in data sources, for, we mentioned the customer behavior tracking, social media interaction, purchase history, website interaction, and in output channel, the website it contains website and landing pages, email campaign, social media advertising, and mobile app notifications. There, Tarun, just a second. You have not shared your whole screen, right? yes, sir. You have not shared your entire screen, right? Because what we are able to see is just your first slide. Mm, Since the start of the presentation, we are only able to see your first slide. चेंज में करते जा रहा हूँ आई थिंक एक मिनट You have do not shared your entire screen. do one thing, स्क्रीन Yeah. शेयर कैंसिल करो। इसके बाद शेयर स्क्रीन पे अगेन क्लिक करना और इसके बाद एंटायर स्क्रीन को शेयर करना। यस सर ट्राई करते हैं दोबारा क्लिक ऑन स्क्रीन शेयर और फिर एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना। अभी आपने स्पेसिफिक टैब सेलेक्ट किया होगा या फिर एप्लीकेशन। नाउ सर इट इज विजिबल या दिस इज विजिबल। कंटिन्यू। ओके सर You तो can start from methodology again. यस सर You can start from your methodology, your steps that you've taken again. It ओके wasn't actually clear to me. तो Okay, go ahead. ओके सर so for processing pipeline, I'm using like real-time data integration, privacy compliant storage, and feature extraction, plus model training and inference. Now move to the next phase, key AI components and function, where our first motive is customer behavior analysis for real-time tracking of interaction across channels, predictive modeling of purchase intent. For this customer behavior analysis, we use the API key of Twitter or any other social media platform. And then go to content personalization, where dynamic ad generation using RAG and contextual recommendation via GNN. And for campaign optimization, we use A/B testing with reinforcement learning, budget allocation based on performance metrics, and for engagement enhancement, we use sentiment-based message customization and conversational AI for real-time support. Now move to evaluation metrics. For customer engagement, they are CTR, click-through rate, and time spent on personalized content. For personalization effectiveness, there is customer retention rate and conversion rate improvement. For predictive accuracy, we use recommendation precision and recall, and there is behavior prediction accuracy. For marketing efficiency, we use CPA and ROAS. Now move to ethical consideration and compliance. For privacy protection, we use GDPR and CCPA Okay, compliance. you can proceed to the code now. Okay, sir.
This meeting is Here being is my recorded. code. Okay, sir. So first we import the Google generative AI library because we using API key of Google Gemini. Here we use Gemini API key for and the model is Gemini 1.5 Flash latest. So now we start from this part where we define sentiment analysis system. Uh, in this line defines a function named analyze sentiment that takes one argument, review. This represents the test of the review that needs to be analyzed. And in this part, the line creates a query string by embedding the review within a request to analyze its sentiment, and this review sent to the Arc Gemini model. And in this part, we take an example where we use a simple sentence of product review, and here's the output, which shows the positive nature, and the phrase. Now move to the second collab. Here in this part, we define the ad content, or where we generate ad. The code begins by defining a function using the def keyword generate ad content. The function takes one input parameter, customer profile, which is expected to be a string describing the customer preference and behavior. And in here, inside the function, a query is created using a f string. This query is essentially an instruction for the AI model. It is crafted to request the model to create a personalized ad for a customer who followed by the specific detail provided in the customer profile variable. And Okay, so like just tell me, where have you taken this? Is this project powered marketing assistant? I'd given you the reviews that you have to pull in the data set of like similar products. Where have you done that? uh, like so, if we put data set, You've also mentioned your RAG things, right? RAG methodology you're going to use somewhere in your presentation. Where is yes, that part? This is an API call, right? सर अभी मैंने अधिकतर सर एपीआई की का यूज किया क्योंकि डायरेक्टली डेटा सेट अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी। ये तो आपने एपीआई की ये तो आपने सिमिलर कर ली ना, बट ये बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से दोगे? सर अगर हमें इसे और कॉन्टेक्स्ट देना है तो हम ट्विटर या फिर फेसबुक जैसे कई सारे एपीआई की तो मर्ज वही करके साथ में करना था ना उसको, और वो सर करो किया तो फिर था आपका पर डेटा सेट भी लार्ज होगा, फिर आपको रैग लगाना पड़ेगा, वो सब वो हो आपका सॉफ्टवेयर बनता। यस सर। अभी इतना ही करा है? नहीं सर वो इसमें बाकी हमने छोटे मोटे जितने रहे रीइंफोर्समेंट और आरएल वगैरह जो भी आपने कहा था यूज करने वो सब हमने यूज किया है, जैसे कि यहाँ ओके, पे हमने स्टैक दिखाते थे। इंसाइट वगैरह किया था। थोड़ा शॉर्ट में बताओ, ठीक है, शॉर्ट में बताओ। जैसे दिस इज टू जनरेट a सोशल मीडिया पोस्ट, राइट? ओके सर। तो सर यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट इंसाइट कर रहे हैं जिसमें हम जो क्वारी है यूजर डालेगा उसको हम मॉडल तक सेंड करेंगे और फिर मॉडल जो आउटपुट देगा उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम्म। एंड यहाँ पे सर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए जिम का यूज़ कर रहे हैं जो कि इस एल्गोरिथम को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सर हमने एपिसोड्स की लिमिट लगा के रखी है जो कि 5 तक की है। और यहाँ पे बाकी हमारा डेटा सेट रहेगा जिसमें हम यहाँ पे ये 5 वैल्यूज तक करेंगे। जहाँ पे अगर दिक्कत आती है तो ये बार बार उसको रिपीट करते रहेगा वाइल लूप के अंदर जब तक वो परफेक्ट आपको नहीं देता। ओके, सर कॉल यहाँ कब कहाँ पे करा है इसको? जैसे कॉल कहाँ पे करा है? यहाँ पे करा कॉल? ये सर ये पूरा आउटपुट वगैरह जो जनरेट हुआ ऐड वगैरह के लिए। ओके, हाँ चलो, ये कुछ अब दिखाओ, ये स्टार्ट इसका इनपुट दिखाओ सबसे पहले। इनपुट में सर हमने यहाँ पे जो ऊपर मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल लिए थे उसको यहाँ पे रख दिया। डायरेक्टली हमने एग्जांपल के लिए अभी रिव्यू में एक लाइन लिख के डाल दी है किसी प्रोडक्ट का रिव्यू। और हम्म। सेम चीज़ हमने डायनेमिक ऐड के लिए भी हमने किया कि एक प्रोफाइल हमने एग्जांपल में रख दिया है। और ऐसे करते हम्म। करते हमने 3 से 4 स्टेप यहीं पे रख दिया और सीधे आउटपुट जब कॉल किया तो हमें ऐसा आउटपुट मिला है जिसमें स्टेप 1 में जब हमने सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए किया था तो हमें हम्म। आउटपुट में ये मिला कि रिव्यू कैसा है, पॉजिटिव है। उसमें जो ट्रिगर वर्ड्स थे उनका एनालिसिस किया गया यहाँ पे। और हम्म। एड क्रिएशन के लिए हमने एक टेम्पलेट पूरा ऐड क्रिएट करवाया जिसमें हम्म। प्रोडक्ट की इमेज वगैरह डालने के बारे में बताया गया और ठीक कैसे जाने उसका एग्जाम्पल दिया।
ठीक और है सर ठीक है, यहाँ आगे पे चलो। रियल टाइम कस्टमर इंसाइट भी हमने अराउंड किया, जिसका जब हम इकट्ठे रहे तो ये इंसाइट भी देने लगा कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो किस प्रोडक्ट के बारे में था, कैसा था। और एड ऑप्टिमाइजेशन के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो हमने यूज की थी उसके एपिसोड के बारे में यहाँ भी आउटपुट देने लगा। एंड देन सर जैसे जीएनएन वगैरह आपने यूज़ करने को कहा था, तो इस पार्ट में हमने जीएनएन का भी यूज़ किया ओके है। ओके, एक मिनट एक मिनट, अभी 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 स्लो डाउन हो, पीछे ऊपर जाओ। ये रिवॉर्ड किस बेसिस पर असाइन कर रहे हो? सर आप ये एड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने जैसे बोला था रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कैलकुलेशन लिए। एक्सप्लेन करो मुझे इसकी। सो किस केस में कैलकुलेशन, ज्यादा आएगा ये रिवॉर्ड, किस केस में कम आएगा? जैसे कि आप पॉजिटिव लेते तो उससे आप ज़्यादा आएगा। अगर मुझे ऐड ही नेगेटिव बनानी है फिर? अगर मेरा इनपुट में ऐड ही नेगेटिव का है, अगर मुझे किसी की नेगेटिव पब्लिसिटी करनी है और वही तुम्हारा इनपुट है, देन इन दैट केस योर टोटल रिवॉर्ड अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव होगा ना? जस्ट गोइंग बाय लेमन टर्म्स, मैं अभी तुम्हारे कोड में गया नहीं हूँ एग्जैक्टली। आई वुड से पीसेज हैं तुम्हारे पास, बट थोड़ा सा भी इसको स्ट्रक्चर करने का काम करना पड़ेगा। ओके आगे चलो, नेक्स्ट क्या बना है? और इसके नीचे जैसा आपने कहा था जीएनएन वगैरह का इंटीग्रेशन भी हमने किया था, तो ये ओके, उसका कोड है। और ये आउटपुट जिसमें ऐड कंटेंट और ऐड ऑप्शन ग्राफ वगैरह, देखो। सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये ग्राफ हेडलाइन ग्राफ वगैरह। ग्राफ, जीएनएन नहीं, ग्राफ बेस्ड न्यूरल नेटवर्क में ग्राफ ग्राफ का है। ग्राफ से आप नहीं होगा। ग्राफ नहीं बनाया? तो ग्राफ शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। शो नहीं हो रहा? प्लॉट कहाँ कर रहा है? प्लॉट का भी कोड नहीं है। सर प्लॉट का कोड होगा ना, ग्राफ बनाओगे तो प्लॉट का कोड होगा। प्लॉट नहीं, मैट प्लॉट लिब कहीं यूज किया होगा ना फिर? नहीं नहीं वो यूज नहीं। फिर प्लॉट कहाँ से होगा? नीचे जाओ, रैग में क्या बनाए हो? रैग में तो नॉलेज वो जो बेस ये है जनरेशन तुम्हारा। ऐड जनरेशन के लिए था। ठीक है, एक मिनट रुको रुको, ऊपर जाओ। कस्टमर प्रोफाइल एंड नॉलेज बेस का इनपुट में ले रहे हो, एंड रिट्रीव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये फिर एपीआई कॉल ही है, बस तुम्हारा लूप है। ये रैग नहीं होता है, ये बस तुमने कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट बढ़ा दिया बस। तो ये भी टेस्टिंग यहाँ पे अच्छे वर्क कर नहीं रहा था, तो उसको अभी मैंने कमेंट आउट करके रखा है। देखो मैं ये कहूंगा ना, तुम्हारा अभी जो एक चीज, तुम्हारे पास पीसेस हैं बट वो पीसेस कैसे फंक्शन कर रहे हैं ना, वो अभी नहीं समझ रहे हो तुम। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करना। ठीक है देखो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट, एक वीक और है तुम्हारे पास। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम बस उन्हीं टीम, और बहुत लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स। आई यस थिंक सर। अभी 4 टीम्स के हो गए हैं ऐसे कि वी कैन वर्क विद देम टू कंप्लीट देयर पेपर्स। ठीक है। यस सर। सो अभी तुम्हारे पास एक वीक है, तुम्हारे पास पीसेस हैं, सबसे पहले तो फिगर आउट करो तुम्हारा वो रिवॉर्ड जो है किस बेसिस पे चल रहा है। यस सर। वो नेगेटिव पे भी चलना चाहिए, पॉजिटिव पे भी चलना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी मल्टीपल इनपुट्स, द आउटपुट ऑफ वन पर्टिकुलर फंक्शन शुड बी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ मॉड्यूल। अब उसमें तुम अपना आरएल लगा रहे हो तो आरएल लगाओ, तो तुम्हारा रिवॉर्ड जो आ रहा है यस फर्स्ट सर। स्टेज के आउटपुट से, तो वो भी नेक्स्ट स्टेज में इनपुट जाएगा। तभी आरएल का फायदा है, बिकॉज तुम अगर सिर्फ प्रिंट करा दोगे रिवॉर्ड को तो क्या फायदा उसका? इट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट इन द नेक्स्ट स्टेज, राइट? यस सर। वो तुम्हारा हो ही नहीं रहा है। रैग में तुमने बस प्रॉम्प्ट बढ़ा दिया। रैग होता है कि यू आइदर, उसमें भी तरीके होते हैं, एफएसएस इम्प्लीमेंट कर लो, क्यूडर वेक्टर डेटाबेस इम्प्लीमेंट कर लो, ग्राफ रैग इम्प्लीमेंट कर लो, और अभी तुम्हारे पास कोई इंटरनेट से नॉलेज बेस भी नहीं आ रहा है। थोड़ा काम करो इस पे अभी, ये वो नहीं होगा मतलब। यस सर। ठीक है, तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स है और वो भी मतलब एक साथ नहीं काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ बनाए हो? सर ये बाकी तो कुछ डमी तो कोड है।
मैट्रिक फॉर इवैल्यूएशन वगैरह के लिए जो आपने कहा था, सीटीआर कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स और सीपीए वगैरह, तो ये उसका दैट था। इज फाइन, बट उसका तुमको डेटा पुल करना पड़ेगा। यस सर। ये तुम तो डमी डेटा पे काम कर रहे हो, ये डमी डेटा लिए और सारी चीज सब चीजें तुम्हारे पास बनी पड़ी है, बट तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है एक्चुअल डेटा का। सर एक्चुअल डेटा के लिए ज़्यादातर एपीआई की हम लगाएं तो ज़्यादा सही वर्क करेगा, आई थिंक। ठीक है, तो फिर पूरा डेटा सेट जनरेट करवा लो ना एक बार। पूरा डमी डेटा सेट जनरेट करवाओ, एक कोई सीएसवी जनरेट करवाओ पूरी पूरी, ओके सर। उस पे काम करो। ओके सर। ये नहीं बोला कि डमी डेटा पे मत काम करो, डमी डेटा पे करो काम, कोई इशू नहीं है, बट फिर वो एक जैसा होना चाहिए, एक सेट से होना चाहिए। हर एक इंस्टेंस के लिए अगर तुम एक अलग डेटा सेट जनरेट करा रहे हो तो वो एक साथ काम नहीं हो रहा। ओके सर। मतलब अगर तुमको यही करना है ना, इसको पूरा पूरा डालो अपना एलएलएम वगैरह में डालो और बोलो कि पहले तो मुझे इसके अकॉर्डिंगली एक डेटा सेट बना के दो, हाउ विल दैट लुक। और ग्राफ रैक वगैरह यूज करोगे तो वो शायद एक सीएसवी होगी भी नहीं, दो तीन सीएसवीज बनेंगी, उनको तुमको एक साथ काम करवाना पड़ेगा। ओके सर।